So in the last class, students, we talked about the coordination compounds. We also talked about what is ligand, what is central metal ion. Okay, there is more to know about these species. So let's know today about the central metal ion. Has one property which is called its coordination number. Coordination number of central metal ion. Now let's find out what does it mean. What is coordination number? As you remember, we said in the beginning of the chapter, in all the coordination compounds, there is one common character, that the central metal ion forms coordinate bond with the ligand. Now ligand are the donor atoms. Because as you remember, what is a coordinate bond? In a coordinate bond, two atoms share a pair of electron, but that pair comes only from single atom. It is not like a simple covalent bond where every atom is giving one electron and the pair is shared. Here there are two atoms, one is acceptor and one is donor, and then they share the pair of electrons. So ligands are donors and the acceptors are the central metal ion. Okay, so the central metal ion accepts the lone pair that the ligands are giving. So let us define what is coordination number of central metal ion. The total number of pairs of electron accepted by central metal ion in a complex. So this is the definition of the coordination number. Simply एक सेंट्रल मेटल आयन एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कितने लोन पेयर्स एक्सेप्ट कर रहा है, उसका टोटल नंबर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है. हम बार बार एक ही एग्जांपल लेंगे जो हम शुरू से ले रहे हैं. तो अब जैसे ये है, इसमें जो Fe है वो आपका सेंट्रल मेटल आयन है. वो लिगैंड कौन सा है जिससे कनेक्टेड है? साइनाइड. ईच साइनाइड लिगैंड कैन गिव वन लोन पेयर. हमने पढ़ा था साइनाइड लिगैंड इज अ यूनिडेंटेट लिगैंड. वन CN कैन गिव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देयर आर 6 CN. So what is the coordination number of iron in this complex? It is 6 because it is accepting 6 pair of electrons from the cyanide ligand. और एक लिखती हूँ मैं. सपोज हम यहाँ पे लिखे एक और कॉम्प्लेक्स. सपोज इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम एंड इट इज अटैच्ड टू so this is another case. Now chromium is attached to two NH3 ligands, two H2O ligand, two Cl ligand. Now NH3 is also monodentate, तो दो NH3 दो लोन पेयर देंगे, दो H2O दो लोन पेयर देंगे और दो Cl भी दो लोन पेयर देंगे. फिर से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्रोमियम का वो है 6. Now the most commonly found coordination numbers that we have seen in the complexes are 2, 4 and 6. ये कॉमन है लेकिन सबसे ज्यादा है 4 और 6. मतलब जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, it revolves around two types of complexes, one with coordination number 4 of the central metal ion and one where the coordination number of central metal ion is 6. मतलब tetra coordinated and hexa coordinated complexes are found to be stable, and there are many examples which fall in these two categories. Okay, now I write one more here. FeEDTA. Okay, this is the one now. FeEDTA. Here there is a charge present on it and the charge is found to be -1. So this is one complex ion. Now अब यहाँ पे ligand एक ही है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट. ligand is only one, लेकिन हमें लिगैंड काउंट नहीं करना है. मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ तक अगर आप लिगैंड का भी नंबर काउंट करते तो वो 6 था. 6 साइनाइड, 2 NH3, 2 H2O, 2 Cl मिला के 6 लिगैंड. यहाँ लिगैंड एक ही है. अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है.
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 नहीं होगा, बट कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 होगा, बिकॉज यू नो EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लिगैंड. ईच EDTA can give rise to 6 lone pair to the central midline. Okay, so therefore here also the coordination number of Fe is 6. It is very very important. Such questions are asked जिसमें coordination number निकालने के लिए बोलते हैं. मैं और एक example लिख रही हूँ. Suppose it is an example of platinum attached to OX twice. अब देखो, platinum is attached to OX twice. Now here what is OX? If you remember our last discussion where I was giving you structures of ligands, OX stands for the oxalate ligand. Oxalate was COO minus, COO minus. ये भी लोन पेयर दे सकता है, ये भी लोन पेयर दे सकता है, मतलब टोटल डेंसिटी है 2. So each oxalate can give 2 lone pairs. और यहाँ पे कितने ऐसे ऑक्सलेट अटैच्ड है? 2. मतलब टोटल कितने लोन पेयर जाएंगे प्लैटिनम को? 4. So here the coordination number of platinum is 4 because each oxalate is a bidentate ligand and there are 2 oxalate attached. So total number of pair of electrons given will be 4. So such examples can be asked where they are asking you the coordination number of the central midline. Other than coordination number, there is one more property of the central midline which is important. That is called its oxidation number. Now oxidation number is the charge that you have already studied in the chapter of redox reactions. तो वो oxidation number तो आप पहले ही जानते हो हमें कैसे निकालना है, ठीक है? तो वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, या एक इन्हीं एग्जाम्पल से मैं आपको वो भी बता देती हूँ, चलो एक बार शॉर्ट में. बट ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब तो चार्ज ही होता है कि पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है. जैसे ये जो हमारा, हम बार बार एक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, K4FeCN6. इसमें अगर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोला है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? इट इज द चार्ज. सो हाउ डू वी फाइंड चार्ज? What is the total charge on this molecule? 0. So let us put all the charges. The charge on potassium is +1. So 4 times +1 plus आयरन के लिए x लिख रही हूँ क्योंकि हमें नहीं पता. एक साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1 और ऐसे 6 साइनाइड है एंड सम इज इक्वल टू 0. तो 6 times -1 ऐसे लिखना चाहिए. So let's find out what is the total there. So this x comes out to be +2. You can solve this equation and get the value of x as +2. So oxidation number of Fe in this complex is +2. एक और complex इसके जैसा similar है, K3FeCN6. Now if it is K3 and you find the charge present on Fe, it comes +3. आप calculate करके देखोगे तो +3 आएगा. मतलब आप इस तरह से central midline का oxidation number find कर सकते हो. ओके, so there are so many other examples where we'll be doing this. Now comes an important part of the chapter, what is called as the nomenclature. Nomenclature of coordination complexes. IUPAC nomenclature. जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए एक पूरा IUPAC स्ट्रक्चर पढ़ा है, ऐसे ही एक IUPAC रूल्स है जो हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखने के लिए. ओके, सो देयर आर रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्सेस आल्सो व्हिच आर गिवन बाय IUPAC. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द होल ऑफ दैट पार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल. द फर्स्ट रूल, what does the first rule tells us? Okay, the first rule tells us the order of naming species in an anionic complex. Anionic complex is. नाउ एक बात बता दूं कि रूल्स आपको लिखने में आप ऐसे लिख लो जैसे मैं लिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ बुक्स में बड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखे हुए, तो ये जो मैं लिखा रही हूँ किसी बुक के नहीं है, ये हमने इजी बनाए हैं आपको याद रखने के लिए, तो आप इनको लिख लो. लेकिन ये भी श्योर है एक ही बार लिखने पड़ते हैं,
एक बार लिख के कर लो याद, तो याद हर बार एग्जाम्पल सॉल्व करने से वी कीप देम इन माइंड. लाइक नाउ व्हेन यू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू डोंट हैव टू लुक फॉर दैट रूल्स ऑफ IUPAC सिस्टम. ऐसे ये भी रूल्स बार बार देखने नहीं पड़ते हैं, वो हमें याद हो जाते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने से, तो ये भी हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी हम पहले लिख रहे हैं क्या, द ऑर्डर ऑफ नेमिंग स्पीशीज इन एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स इज. एनायनिक कॉम्प्लेक्स आपको याद है ना क्या था डेफिनेशन, कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. तो जब हम एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं तो व्हाट इज द ऑर्डर, द ऑर्डर इज फर्स्ट यू हैव टू नेम द केटायन इन द आयनाइजेशन स्फीयर. मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के सामने जो केटायन लिखा है पहले उसका नाम लिखना है. ठीक है, अब यही तो सीक्वेंस है, पहले केटायन आता है फिर स्क्वायर ब्रैकेट आता है, तो कोई उसमें बहुत मुश्किल चीज नहीं है याद रखने की. पहले आप केटायन का नाम दो क्योंकि केटायन पहले रखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के सामने. ओके, केटायन ऑफ द आयनाइजेशन स्फीयर, देन कम्स लिगैंड्स, देन कम्स सेंट्रल मेटल. ठीक है, ये सीक्वेंस बताइए अभी मैंने आपको सिर्फ, कि अगर एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स को नाम देना, पहले तो ये पहचानना पड़ता है कि हमें जिस कॉम्प्लेक्स को नाम देना है वो कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है. अगर वो एनायनिक है तो हमें ऐसा सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले कैटायन ऑफ द आयनाइजेशन स्फीयर, देन लिगैंड्स, देन सेंट्रल मेटल. ठीक है, अगर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक और न्यूट्रल, ये पहला सीक्वेंस जो हमने दिया ये एनायनिक के लिए दे दिया. अब कैटायनिक या न्यूट्रल दोनों के लिए एक जैसा है. कैटायनिक या पहले कैटायनिक बताती हूँ फिर न्यूट्रल बताऊंगी, लाइन से बताती हूँ. पहले कैटायनिक, कैटायनिक के लिए सामने का कैटायन है ही नहीं स्क्वायर ब्रैकेट के, उसके तो स्क्वायर ब्रैकेट के खत्म होने के बाद एनायन होते हैं. बिकॉज व्हाट इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हम उसको कहते हैं जिसके स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज हो. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर में कोई एनायन लिखते हो तो सीक्वेंस भी वही रहेगी. मतलब पहले लिगैंड्स, देन सेंट्रल मेटल आयन एंड देन एनायन ऑफ द आयनाइजेशन स्फीयर. आयनाइजेशन स्फीयर का एनायन आखिरी में, क्योंकि वो वैसे भी स्ट्रक्चर में लास्ट में ही आता है. ठीक है, और इससे हमें एक और बात पता चल गई कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें भी हमेशा फिक्स है कि पहले लिगैंड फिर सेंट्रल मेटल आयन, पहले लिगैंड फिर सेंट्रल मेटल आयन. और अगर सामने कैटायन प्रेजेंट है तो पहले कैटायन, और अगर नहीं प्रेजेंट, एनायन प्रेजेंट है तो पहले एनायन. तो अब आप न्यूट्रल का तो बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर लोगे. हमने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन से बोले थे, जिसके सामने कैटायन भी नहीं होता और लास्ट में एनायन भी नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट होता है. तो इसकी सीक्वेंस तो बहुत सिंपल हो गई, सिर्फ लिगैंड और सेंट्रल मेटल, खत्म. उतना ही नाम देना है हमें. सो ये तो पहला रूल हो गया जिसमें हमें सिर्फ ऑर्डर बताया, पहले किसका नाम लिखना है. ओके, सो द ऑर्डर इज दिस. आई होप यू गॉट इट. याद हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन टेक अ फोटो ऑफ दिस शीट, अदरवाइज यू कैन नोट इन योर कॉपी. ओके, लेट्स गो फर्दर. द सेकेंड, ये रूल्स लिख लो, मैं बार बार बता रही हूँ कि ये इस फॉर्म में किसी बुक में नहीं है, अदर फॉर्म्स में है, टफ लगेंगे पढ़ने में. इजियर वे से कर रही हूँ क्योंकि कोई ये नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के रूल्स बताओ नेमिंग के, वो आपको सिर्फ नाम देने के लिए कहेंगे. तो ये उसका इजियर वर्जन बनाया हमने. ओके, द सेकेंड रूल, द सेकेंड रूल इज नेमिंग सेंट्रल मेटल आयन. सेंट्रल मेटल आयन का नाम कैसे देते हैं उसके लिए भी रूल्स है. तो लेट्स सी दैट. फर्स्ट, अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या रूल है, इन केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स द रूल सेज दैट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन हैज अ सफिक्स 8. उसके सफिक्स का मतलब होता है द लास्ट पार्ट ऑफ द नेम विल बी एंडिंग विद 8. मतलब अगर वो है सपोज निकल तो हम क्या लिखेंगे, निकलेट. अगर सेंट्रल मेटल आयन निकल है तो वो हो जाएगा निकलेट. अगर सेंट्रल मेटल आयन सपोज है प्लैटिनम तो वो हो जाता है
प्लैटिनेट, लाइक दिस। ये लेकिन ये सब कब होने वाला है? सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कौन से थे? जहां स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो उस केस में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका नाम एंड होगा ATE से, ठीक है। निकल होगा तो निकलेट, प्लैटिनम होगा तो प्लैटिनेट। then if there is another example we can take some other metal, for example ठीक है। अभी इसके कंटिन्यूशन में कुछ मेटल्स है जिनके लिए एक स्पेशल रूल है कि उन देर आर सम मेटल्स फॉर विच ओनली देयर लैटिन नेम्स आर यूज्ड। तो वो बता देती हूँ, जैसे गोल्ड, सिल्वर, देन लेड, then iron, copper, then iron, copper, gold, silver, then there is lead, okay, and mud, ठीक है। ये जितने केसेस है इनमें सिर्फ लैटिन नेम ही यूज होगा। मतलब अगर AU प्रेजेंट होगा हम उसको गोल्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑरेट। अगर AG प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे आर्जेंटेट। अगर PB प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे प्लम्बेट। अगर Fe प्रेजेंट होगा तो फीरेट, और अगर Cu प्रेजेंट होगा तो क्यूपरेट। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। इवन टिन, हाँ, वन आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर इज टिन प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे स्टैनेट। ये याद रखना है अच्छे से कि सिर्फ यही 6 मेटल्स है जिनके केस में उनके लैटिन नेम्स यूज होते हैं। बाकी सब जगह पे कॉमन नेम ही होंगे। बाकी मतलब सभी, जैसे कोबाल्ट हो तो हम कहेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्ट के लास्ट में ATE लगा देंगे। बट ये जो पर्टिकुलर केसेस हैं इनमें जरूरी है कि हम उनका लैटिन नेम यूज करें। जिंक होगा तो हम कह देंगे जिंकेट, लाइक दिस। इज इट ओके? सो ये हो गया नेमिंग सेंट्रल मेटल आयन। नेमिंग सेंट्रल मेटल आयन का एक और पार्ट है। अब ये हमने एनायनिक का बता दिया, अब कैटायनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक और न्यूट्रल के लिए कोई रूल ही नहीं है एक्चुअली। इन केस ऑफ कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस देयर इज नो चेंज इन द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। मतलब अगर वो Cu है तो हम कॉपर बोल देंगे, अगर वो Na है तो हम निकल बोलेंगे। मतलब कुछ चेंज ही नहीं करना है। Pt है तो प्लैटिनम बोलेंगे। देयर इज नो नीड टू चेंज द नेम, नो ATE suffix, no change. The name of the metal is to be written as such in the name, okay, of the complex without any suffix. तो कैटायनिक और न्यूट्रल में कोई सफिक्स यूज नहीं करना है, लैटिन नेम भी यूज नहीं करना है। नॉर्मल नेम जो आप उस मेटल को बोलते हो वही वहां पे भी लिखना है। इज इट ओके? देन नेमिंग सेंट्रल मेटल आयन का और एक पार्ट है, मतलब 2 पार्ट हो गए। एक तो एनायनिक में कैसे नाम करना है, एक तो न्यूट्रल और कैटायनिक में कैसे करना है। अब एक और पार्ट है, द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन is followed by a bracket, in which bracket having oxidation number of central metal ion in Roman numerals। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जैसे आप सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखोगे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते वक्त, तो उसका नाम खत्म होते ही, सपोज आपका सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्टेट, जैसे ही कोबाल्टेट वर्ड खत्म होगा तो एक ब्रैकेट आएगा और उसके अंदर रोमन नंबर्स में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है सेंट्रल मेटल आयन का, प्लस माइनस नहीं, 2 3 जो भी है। अगर कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है तो जैसे ही कोबाल्ट वर्ड खत्म हुआ तो एक स्मॉल ब्रैकेट जिसके अंदर रोमन नंबर में हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। आर यू गेटिंग? सो दिस इज कंप्लीट रूल फॉर नेमिंग सेंट्रल मेटल आयन। नाउ वी सी द रूल्स फॉर नेमिंग लिगैंड्स।
How to name ligand? For that there are certain rules. So first, all anionic ligands, हमने पढ़ा था जब लिगैंड्स डिफाइन किए थे कि लिगैंड खुद एक एनायन हो सकता है या लिगैंड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है. इफ यू आर नेमिंग एन एनायनिक लिगैंड, all anionic ligands have a suffix O in their name. हर एनायनिक लिगैंड को अपने नाम के एंड में एक सफिक्स होना चाहिए O. लिख के बताऊंगी कैसे. अच्छा, आपका जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है आपके ऐप में, उसमें मैंने 2-3 शीट्स अपलोड किए हैं, अभी आपको दिखेंगे पीडीएफ. वहाँ पे मैंने आपको इसका पूरा टेबल दिया है, डिफरेंट लिगैंड्स को कैसे नेम करते हैं. सो आई हैव गिवन यू दैट कंप्लीट टेबल. सो प्लीज रेफर टू दैट टेबल व्हाइल यू सी हाउ टू नेम लिगैंड्स. जैसे अगर वो क्लोराइड हो Cl-, तो हम क्लोराइड की जगह इसको बोलते हैं क्लोरिडो. अगर वो ब्रोमाइड हो तो ब्रोमिडो. Then you can understand F negative will be fluorido. ठीक है. Then if it is NO2 ligand, then we call it nitrito. N-nitrito, क्योंकि NO2 लिखा है. अगर मैं इसको ONO लिखूं then O-nitrito. इन दोनों में फर्क ये है, ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है. It can bind through N, it can bind through O also. If it is binding through N, then N-nitrito. If it is through O, then O-nitrito. Then we have more like carbonate. तो इसको लिखते हैं carbonato. Then sulfate is sulfato. OH- hydroxo. Like this. तो जितने भी कॉमन एनायनिक लिगैंड्स हैं मैंने लिख दिए. कुछ आप वो शीट पे रेफर कर सकते हो जो इस सेक्शन के साथ आपको मिल रही है. यू कैन सी इन द स्टडी मटेरियल सेक्शन. ठीक है. फिर न्यूट्रल लिगैंड्स को जब नाम देते हैं, न्यूट्रल लिगैंड्स के लिए अलग नाम है. उनके लिए ऐसे सफिक्स सिर्फ नहीं है, नाम ही बदल जाता है. न्यूट्रल लिगैंड्स. फॉर न्यूट्रल लिगैंड्स लाइक H2O we call it aquo. For ammonia we call it amine. Aquo, amine. ठीक है. More neutral ligands that you have, one is aquo, amine, then carbon monoxide. It is called carbonyl. कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम है कार्बोनिल. बाकी जितने भी लिगैंड्स हैं उनके जो नाम है वही आपको लिखने हैं, जैसे पिरिडीन, इथिलीन डायमीन. बट कुछ है जिनके हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है. सपोज मतलब आपका लिगैंड अगर पिरिडीन है तो पिरिडीन का फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, C5H5N. इतना सब लिखने के बजाय हम सिर्फ PY लिख सकते. अगर आपका ये जो कंपाउंड है वो है सपोज इथिलीन डायमीन. इथिलीन डायमीन हमने कल लिखा था, इसका फॉर्मूला कितना बड़ा है आपको पता है. दोनों तरफ NH2 और बीच में CH2. तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिखने से अच्छा फॉर्मूला में सिर्फ EN ऐसा लिख लो. तो ऐसे कुछ है जिनके लिए शॉर्ट फॉर्म, जैसे ऑक्सलेटो इज ओनली विथ OX. ठीक है. तो ये हो गया लिगैंड्स का नेमिंग का पहला रूल कि उनके नाम लिखते कैसे. फिर उसमें लिगैंड्स में भी ऑर्डर है. मतलब अगर एक ही कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे लिगैंड प्रेजेंट हैं तब ऑर्डर क्या होना चाहिए. सो लिगैंड्स are named in alphabetical order. मतलब आपके पास अगर 3 या 4 या 5 लिगैंड प्रेजेंट है किसी कॉम्प्लेक्स में तो आप उनको उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम करोगे. लिगैंड के नेमिंग का लास्ट रूल.
that to indicate the number of ligands present, a prefix is used. मतलब अगर आप बताना चाहते हो कि एक लिगैंड कितने बार प्रेजेंट है, जैसे अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स लिखा था K4FeCN6, तो इसमें जो साइनो लिगैंड है वो कितने हैं? 6। तो साइनो लिगैंड 6 है, ये बताने के लिए साइनो के पहले हम एक प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स कैसा होता है? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, देन 5 के लिए यू नो इट इज ऑलवेज पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा। मतलब ये जो प्रीफिक्स है यहाँ पे, क्योंकि 6 साइनाइड लिगैंड्स प्रेजेंट है, तो हमारा जो प्रीफिक्स होगा वो होगा हेक्सा। तो ऐसे प्रीफिक्स भी यूज करने हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ चिलेटिंग लिगैंड्स, आपको मैंने बताया था चिलेटिंग लिगैंड्स क्या होते हैं। फॉर वेयर द डेंसिटी इज 2 और मोर, ठीक है, वो सब चिलेटिंग होते हैं, जैसे इथिलीन डायमीन, ईडीटी, ये सब ऑक्सलेटो, ये सब चिलेटिंग लिगैंड्स है। तो चिलेटिंग लिगैंड का नाम लिखने के पहले अगर हमें उसका नंबर बताना है, तब 2 के लिए डाई नहीं बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्रेकिस, ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। 5 तो डबल होते नहीं और 6 वाला भी डबल नहीं हो सकता, इसलिए बस हमें इतना ही नंबर जानना है, आइदर इट इज बिस, ट्रिस और टेट्रेकिस। व्हेन आर वी सपोज टू यूज दिस? इफ योर लिगैंड इज ऑलरेडी अ चिलेटिंग लिगैंड लाइक इथिलीन डायमीन। देखो इथिलीन डायमीन के खुद के नाम में डाई है, तो अगर आप 2 इथिलीन डायमीन प्रेजेंट है और आप उसको नाम देने जाओगे तो आप डाई इथिलीन डायमीन हो जाएगा। टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन, इफ देयर इज इथिलीन डायमीन, देन वी आर यूजिंग द प्रीफिक्स लाइक बिस। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो ऐसे बेसिकली हमने सारे रूल्स लिख लिए, ओके। अब एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि उसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको ओरली बताती हूँ कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हो, द लास्ट रूल सेज दैट व्हेन यू आर राइटिंग अ नेम ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देयर इज नो गैप एक्सेप्ट द गैप बिटवीन द नेम ऑफ the ionization sphere and the coordination sphere. आयनाइजेशन स्फीयर का नाम लिखने के बाद आप एक गैप करके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम स्टार्ट करोगे, ये पहला रूल। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देते वक्त कोई गैप नहीं होनी, नो गैप, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस नेम एंड देयर इज ओनली वन कैपिटल लेटर इन द नेम, दैट इज द फर्स्ट लेटर। बाकी कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा और बीच में गैप नहीं होगी। इट्स अ कंटिन्यूअस नेम, ओके। आई टेल यू विद एन एग्जांपल। सपोज इट इज K4FeCN6। अगर हम इसको नाम देना चाहते तो हम कैसे देंगे? पहले ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, पहला रूल देखो। पहले तो ये पहचानना है किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। आप क्योंकि इसके सामने एक कैटायन प्रेजेंट है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट इज एन एनायन, सो इट इज एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर क्या था? पहले आयनाइजेशन स्फीयर का कैटायन, फिर लिगैंड, फिर सेंट्रल मेटलाइन। ये रूल था आपका पहला, जिसमें ऑर्डर बताया था। अब उस ऑर्डर के हिसाब से हमको सबसे पहले किसका नाम लिखना है? इस के का। तो हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पहला लेटर है इसलिए कैपिटल। और पोटेशियम कितने हैं ये नहीं बताते नाम में, ओनली पोटेशियम। हमने रूल में ऐसा नहीं पढ़ा कि आपको आयंस का नंबर भी बताना है, तो नहीं बताना है, सिर्फ नाम बताना है, ओके। ओनली पोटेशियम। इसके बाद आएंगे सेंट्रल मेटलाइन, सॉरी लिगैंड। लिगैंड है हमारा साइनो, और कितने साइनो है? 6। तो हमें उसका वर्ड नाम कैसे लिखना है? हेक्सासाइनो, लेकिन एक गैप के बाद हेक्सासाइनो। और हेक्सासाइनो के बाद सब कुछ स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। अब हमें Fe का नाम लेना है।
Now as it is an anionic complex, then Fe will be called ferrate. ferrate. और जैसे ही ferrate खत्म होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए. तो what is oxidation number of Fe here? We already have found it's +2. तो हम यहाँ पे बस लिख देंगे 2. ये इस कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम हो गया. तो हमने सारे रूल्स अप्लाई करके एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें हमने इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया. अभी हमने और एक एग्जाम्पल लिखा था, आपको याद होगा, K3FeCN6. इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है 3. तो इस नाम में और इस नाम में क्या फर्क होगा? मैं इसी को चेंज कर देती हूँ. पोटाशियम ऐसा ही रहेगा, हेक्सासाइनो ऐसा ही रहेगा, फीरेट भी ऐसा ही रहेगा, बट ये 2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3. दिस इज हाउ वी नेम अ कॉम्प्लेक्स. ओके, कुछ और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको. ओके, लेट्स सी दिस नाउ. अब चलो, सबसे पहले सामने कैटायन प्रेजेंट है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एनायन है. ओके, अब हम टू बिगिन विथ सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे? ये 2 सोडियम मतलब 2 टाइम्स +1, प्लैटिनम को x मान लेते हैं, 4 -1 क्योंकि 4 क्लोराइड है, एंड द सम इज इक्वल टू 0. इफ आई सॉल्व दिस, देन दिस x विल कम आउट टू बी +2. तो फिर से जो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है x आ रहा है हमारा +2. अब इसको नाम देते हैं. किससे स्टार्ट करना है हमें? सोडियम. सोडियम, फिर एक गैप के बाद लिगैंड का नाम. कौन लिगैंड है? क्लोरिडो. कितने हैं? 4. मतलब सोडियम टेट्रा क्लोरिडो. फिर इसका नाम प्लैटिनेट. प्लैटिनेट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2. कॉम्प्लेक्स का नाम खत्म. ठीक है, और एक बताते, हम और एक नाम लिखने की कोशिश करते. Cu Cn twice, Cl twice. I'm trying to write one more for you. Okay, now see this one. इसको नाम देंगे. पहले पहचान लेते हैं कि न्यूट्रल है या कैटायनिक है या एनायनिक है. सामने कोई आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है, पीछे भी नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल. न्यूट्रल के केस में सेंट्रल मेटल आयन के नाम को चेंज नहीं करते. नो सफिक्स, ATE भी नहीं और लैटिन नेम भी नहीं. ओके, ये जरूरी है. अब लिगैंड्स पहले नाम देने हैं और सेंट्रल मेटल आयन बाद में. कौन कौन सा लिगैंड है? एक तो Cn है जिसका नाम होता है साइनो. एक NH3 है, एमीन. आपने देखा न्यूट्रल लिगैंड्स में सेकेंड का एग्जांपल था एमीन. तो एमीन पहले आएगा या साइनो? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फर्स्ट एमीन एंड देन साइनो. एमीन कितने हैं? 2. तो नाम स्टार्ट ही होगा डायमीन, देन डायसाइनो, डायमीन. नो गैप. ओके, क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर ही नहीं है. कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में गैप आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता. सो डायमीन, डायसाइनो, कॉपर. क्यों कॉपर? क्योंकि यहाँ पे नाम चेंज नहीं करना है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. इट विल बी जस्ट कॉपर. देन ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का देखो, इस टोटल पे जो चार्ज है वो 0 है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. 2 साइनाइड -2 होते हैं, इसका मतलब कॉपर +2 होना चाहिए, तभी टोटल चार्ज 0 आएगा. तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +2. तो हमने इस कॉम्प्लेक्स का भी नाम लिख लिया. मैं आपको रूल्स अप्लाई करके दिखा रही हूँ सिंपल एग्जांपल्स के साथ. थोड़े मुश्किल भी हो जाएंगे. मैंने आपको जो शीट अपलोड किया है आपके ऐप में इन द स्टडी मटेरियल सेक्शन, उसमें तो अराउंड 40 एग्जांपल्स दिए हैं मैंने नॉमेनक्लेचर के, बट कुछ रिप्रेजेंटेटिव पहले मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, और एक देखते हैं.
ठीक है, चलो इसकी नेमिंग करते हैं अभी। Cr NH3 thrice, H2O thrice and a Cl3 outside। पहले ये पहचान लो कि कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। इट इज कैटायनिक क्योंकि इस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एनायंस आर प्रेजेंट। अब कैटायनिक है तो हमें सेंट्रल मेटल आयन का नाम चेंज नहीं करना है, ये सबसे पहली बात। अब सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। लेट्स टेक इट एज x 3 times 0, there is no charge on ammonia, there is no charge on water। तो बस पूरा जो बाहर है ये -3 है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट +3 होना चाहिए, और वो जो +3 है वो क्रोमियम का चार्ज। आपको समझ में आ गया ना, ये दोनों 0 चार्ज, और बाहर 3 क्लोराइड आयंस है जिनका चार्ज है -3, तो वो किसके चार्ज पे अटैच्ड है, क्रोमियम के +3 चार्ज पे। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में है +3। अब इसका नेमिंग स्टार्ट करते, किससे स्टार्ट करना है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिगैंड, फिर सेंट्रल मेटल आयन, और लास्ट में वो पीछे प्रेजेंट है जो एनायंस वो। तो लिगैंड आपके पास 2 है, एक एमीन और एक एक्वो। तो किससे स्टार्ट करेंगे, पहले एमीन। कितने एमीन है, 3। सो इट विल स्टार्ट विद द वर्ड ट्रायमीन, ट्रायएक्वो, देन क्रोमियम, क्रोमियम। अब गैप आ सकता है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद गैप के बाद आप लिख सकते हो क्लोराइड। दिस इज हाउ यू नेम अ कॉम्प्लेक्स। इज इट ओके। ये और एक एग्जांपल, आप ये एग्जांपल्स को थॉरोली देखो कि क्योंकि मैं आपको बता रही हूं कि वेदर इट इज योर बोर्ड एग्जाम or your competitive exam, there has to be a question on nomenclature of coordination compounds. Either they give you the formula and ask you to write the name, or if they give you the name and ask you to identify the complex. थोड़े से डिफिकल्ट वाले एग्जाम्पल्स भी लूंगी इस क्लास के लास्ट में। पहले सिंपल वाले आप सीख लो कि हम रूल्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं।